Hello, you're watching Hornbill TV's Northeast Express. Member of Parliament Dr. Angomcha Bimol Akoijam has filed a right to information application with the Ministry of Home Affairs seeking clarity on the existence, legal basis and official notifications, if any, related to so-called buffer zones in Manipur. According to a press release issued by the MP's office, the RTI seeks information on whether any buffer zones have been formally declared that segregate or restrict the free movement of Zo and Mar citizens from Meitei citizens and vice versa. The application also seeks copies of notifications, legal provisions, laws or executive orders under which such zones may have been notified or enforced. The move comes amid public debate and reports regarding the existence of buffer zones between certain inter-district areas of hill and valley districts in the state. Some of you, my friend and citizens of the country, this is where India begins for some politicians and some policy of the government of India. This is where the border of India begins, India with Kukis, and this side is Meiteis and Manipur state. This is like a border. In har jagah pe aise buffer zone bana ke rakha hua hai, as if this is between Pakistan and India. इस देश में काफी घटना हुआ, राइट्स हुआ, मुस्लिम्स और हिंदू के बीच में भी मारपीट बहुत हुआ है इस देश में, लेकिन इस तरह का बफर जोन किसी जगह पे नहीं बनाया. And I'm so ashamed of myself to sit in that house as a member of parliament that even I cannot go to this side because this is India Kuki border. This is Manipur, where Manipur police works, where MP like me from Manipur can walk freely. Here I cannot walk freely, despite the huge presence of security forces. And the rest of the country can't sleep like this. The more people feel alienated and they take a decision, don't call people of Manipur as anti-India. You're working against the constitution itself. I'm a member of parliament. I cannot move freely this side. These are all our troops. I am also protected by CRPF. मेरा सुरक्षा CRPF से है मेरा, क्योंकि मैं MP हूँ इस देश का, फिर भी मैं नहीं जा सकता अपने देश में, मेरा खुद के स्टैंड में I can't go. Ahead of the 2026 Assam Assembly elections, Palasbari constituency's BJP MLA Himanga Thakaria, in an exclusive interview with Hornbill TV, said that the BJP has already completed its election preparations not only in Palasbari but across the entire state. He said that strong organizational work has been carried out at every level. He shared about BJP's electoral performance, party's membership drive and more. Let's have a look. दर्शक, मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए पलासबाड़ी समष्टि की विधायक और बीजेपी की विधायक हेमांग ठाकुरिया जी है. आइए उनसे सीधे थोड़ा बात करने के लिए आया है यहाँ पर. हेमांग जी, अभी 2026 असम इलेक्शन अभी सामने में आ रहे हैं, ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप खुद की आपका क्या प्रिपरेशन थोड़ा बताइए. एक्चुअली क्या है कि सिर्फ पलासबारी में नहीं है, पूरी असम में हमारा जो पार्टी पहले से प्रिपरेशन करके रखा है. आप देखिए, जो पिछली 2024 MP चुनाव था, उसी समय से हमारा प्रिपरेशन चल रहा है एक्चुअली. तो प्रिपरेशन हम सिर्फ पलासबारी में नहीं, पूरी असम में यूकेन से जो हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया है. और पलासबारी में भी हमारा जो बूथ लेवल तक हमारा जो कमेटी है, वो कमेटी पहले से बना के रखा है. और हर बूथ में हमारा अभी मीटिंग चल रहा है, हर मंडल में हमारा मीटिंग चल रहा है, ज़िला स्तर पर भी मीटिंग चल रहा है. तो हम पूरी तरह हमारा पलासबारी में ये इलेक्शन 2026 के पहले से ही रेडी होके रखा है. और अभी 2 महीने के बाद इलेक्शन चुनाव पाएगा. तो आप अभी भी आप MLA है, लेकिन अगर आपको टिकट मिलेगा तो आप चुनाव लड़ने जाएंगे. 2021 में जब चुनाव हुआ था तो हमारा पलासबारी जो जनता है, हमको 41,000 डिफरेंस वोटों से हमको जिताया था, MLA बनाया था डिफरेंस में. तो पिछली जो 2024 जो चुनाव हुआ है, MP चुनाव इलेक्शन, वहाँ पे भी हमारा जो हमारा कैंडिडेट था बिजली कलिता मेधी बाइडो,
उनको 1,05,000 वोट्स पलासबारी से मिला है। जो हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव में 4 ZPC था हमारा, 4 ZPC हमने जीता है। मतलब मिनिमम 10,000 डिफरेंस से 1 ZPC है, हम अनकंटेस्ट जीता हूँ। और जो हमारा मेंबरशिप ड्राइव था पलासबारी में, जब मेंबरशिप ऑनलाइन हुआ था पूरा इंडिया में, पलासबारी में 65,000 मेंबरशिप हमने किया था ऑनलाइन, जो टॉप 14 में था असम के हिसाब से। अगर पार्टी आपको इस बार फिर से आपको चुनाव के लिए आपको कैंडिडेट चुनेंगे तो वोटर के बीच में आप क्या मुद्दा लेके जाएंगे? देखिए, पलासबारी में पिछले 5 सालों में बहुत सारा काम हुआ है। पलासबारी सुअलकुसी ब्रिज बन रहा है अभी, पलासबारी 3,197 करोड़। पलासबारी में IIM हमको मिला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो इंडिया का टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है और जो वर्ल्ड का भी टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। पलासबारी में आयुर्वेदिक कॉलेज बनने जा रहा है। पलासबारी में हमको असम वाला का रोड्स मिला है बहुत सारा। पलासबारी में आप यू कैन से 99% रोड्स डेवलपमेंट काम हुआ है। पलासबारी में हम फ्री डायलिसिस सेंटर लाया हूँ, जो ऊपरहाली में है, ऊपरहाली मेडिकल हॉस्पिटल में है। पलासबारी में 87 मॉडल आंगनबाड़ी सेंटर बन गया है। पलासबारी में ऊपरहाली हाई स्कूल बिल्डिंग जो कंप्लीट हो गया है। पलासबारी में RB हाई स्कूल का बना रहा हूँ। पलासबारी बॉयज़ हाई स्कूल में कंस्ट्रक्शन काम चलेगा। रामपुर हाई स्कूल में भी कंस्ट्रक्शन काम चलेगा। पलासबारी का जो कॉलेजेस है, DK कॉलेज, DK गर्ल्स कॉलेज, रामपुर कॉलेज और दूसरा जो कॉलेजेस है, सभी कॉलेज में हम डेवलपमेंट में काम हो रहा है। साइगांग कॉलेज में भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो एज ए होल पलासबारी में यू कैन से बहुत सारा डेवलपमेंट में काम किया हो। तो उसी हिसाब से हम यू कैन से दिस टाइम इन पलासबारी वी आर एक्सपेक्टिंग 1,40,000 वोट्स। लेकिन पलासबारी में देखा जाता है कि एक तो मेन समस्या है, हमने जितना भी देखा है कि हाथी का समस्या यहाँ पे मेन एलिफेंट कॉम्प्लेक्स होता है और उसके साथ पानी का भी समस्या दिखाया जाता है। तो आप क्या स्टेप लेंगे? पलासबारी में हमारा JJM का काम 70% कंप्लीट हुआ था, 30% अभी बाकी है। अगर वो होगा तो पलासबारी में कोई भी ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पे पानी का समस्या होगा। अभी उसके बाद जो हाथी का समस्या आप बोल रहा था, हाथी का जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ पलासबारी का नहीं है, पूरी असम का है। क्योंकि असम है सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मतलब अगर हाथी का बात बोल रहा है, मतलब एलिफेंट हम सेकेंड लार्जेस्ट है। तो ये जो समस्या है ये हम काफ़ी ट्राई किया था, हम एलिफेंट को यहाँ से भगाने में काफ़ी सफल भी हुआ था। लेकिन फ़िलहाल और एलिफेंट आया है बहुत सारा। तो लेकिन हम उसी समय हम जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बहुत सारा मीटिंग्स भी कंडक्ट किया हूँ। तो अभी तक जो हाथी, क्योंकि ये हाथी का जो मतलब प्रॉब्लम है अभी का नहीं है, ये बहुत सालों तक जो रानी एरिया है हमारा, जो बारडुआर एरिया है, बागान एरिया, वहाँ पे आप यू कैन से परमानेंट रेसिडेंस है वो एक्चुअली हाथी का। मतलब ये पहले से, अभी नहीं है, 100 साल का पहले से वहाँ पे था। लेकिन जो अभी टाउन एरिया है मिर्जा, ऐसे इवन बतरहाट एरिया, वहाँ पे भी अभी हाथी आना शुरू कर दिया है। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली सिर्फ पलासबारी का नहीं है, दूसरा जगह में है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए। और हेमांगो जी ये बताइए, यहाँ पर देखा जाता है कि पलासबारी समष्टि में 2-3 कैंडिडेट है जो कैंडिडेट के तरफ से दावेदारी है, और बीच में आप लोगों के थोड़ा जो वीडियो हमने देखा था कि आप एक पार्टी के खुद के बीच में झड़प हुए थे, तो इससे आपका जो स्टैंड है वो कम हुआ है, ऐसा लगता है आपको? क्या होगा आने वाले दिनों में? एक्चुअली क्या है कि पलासबारी में मेरे ख्याल से एक्चुअली पार्टी हमारा जो काम अच्छा कर रहा है, सिर्फ मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे 126 में जो अच्छा डेवलपमेंट के काम कर रहा है, जो भी MLAs है जो अच्छा डेवलपमेंट में काम कर रहा है, जो 24 आवर्स पब्लिक को दे रहा है, तो पार्टी वो देखता है, सर्वे रिपोर्ट देखता है और उसी हिसाब से फैसला करता है। मेरे ख्याल से मैं 24 आवर्स
मैं मेरा समस्ती में रहता हूँ, हर दिन समस्ती में रहता हूँ और डेवलपमेंट में काम भी बहुत सारा किया हूँ। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल से पार्टी उसी हिसाब से सोचते हैं जो कौन एमएलए कैसा काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब आने वाले दिनों में चुनाव है, मैं यू कैन से हम करीबन 1 लाख अंतर से हम जीत जाएंगे प्लस। मतलब आने वाले दिनों में आप ही जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए? नहीं, डेफिनेटली देखिए, पार्टी देखता है कौन विधायक कितना काम कर रहा है और कौन सा विधायक पब्लिक के पास कितना जुड़े हुए हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पलासबारी में ऐसा एक मतलब यहाँ पे जो फेस्टिवल होता है, जो भी फेस्टिवल है वहाँ पे मैं मतलब कोऑपरेशन करता हूँ एज ए एमएलए। अभी संडुबी फेस्टिवल हो गया, वहाँ पे भी मैं कोऑपरेट किया हूँ। यहाँ पे रास फेस्टिवल होता है, यहाँ पे दुर्गा बसा फेस्टिवल। ऐसा एक फेस्टिवल नहीं है जहाँ पे मैं नहीं जाता हूँ और जहाँ पे मैं कोऑपरेट नहीं करता हूँ। तो पब्लिक वही देखते हैं। एक विधायक का एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक के पास जाइए, उनका जो भी फेस्टिवल है, जो भी उनका है, उनके साथ सहयोग करके सभी का साथ मिलजुल के काम करना है डेवलपमेंट। और एक चीज़ है हेमांगो जी, ये बताइए जी, यहाँ पर जो कांग्रेस अभी असम प्रदेश कांग्रेस में अभी गौरव गोगोई जी लीड ले रहे हैं, उसकी नेतृत्व में अभी चुनाव लड़ने जा रहा है और कांग्रेस बोलता है कि जो उनकी जो नारा है एक योट होगा, एक एकजुट योट होगा। तो आप वो जो उन लोग की जो नारेबाजी है, आप क्या कहेंगे, बताइए। अब देखिए, 2016 से कांग्रेस हर बार बोलता है इस बार उसका अच्छा होगा, इस बार अच्छा होगा। हर चुनाव में 2016 में चुनाव में बीजेपी पावर में आया, असम में आया, असम का जनता बीजेपी को लाया है, असम एजीपी जो भी कोalition है। हम 2019 में भी हम एमपी जो चुनाव है वहाँ अच्छी तरह से आया है। 2021 में दोबारा हमारा सरकार बना है। 2024 में हमारा अच्छा आया है नतीजा। तो हर चुनाव में आप जो भी चुनाव है, डिमा हासांग चुनाव था, कार्बी आंगलॉन्ग चुनाव था, सभी चुनाव में हम अच्छा कर रहा है। बीजेपी अच्छा कर रहा है, बीजेपी एनडीए। लेकिन कांग्रेस एक चुनाव नहीं है जहाँ पे वो अच्छा किया है। तो इस बार भी वो लोग एक्चुअली प्रिपरेशन ही नहीं किया उन लोग 2026 में। तो वो लोग सिर्फ कुछ 2-3 सीट में वो लोग कंसिडर कर रहा है। 126 सीटों में वो लोग नहीं है एक्चुअली। ऐसा है जो 25 to 30 सीट में वो लोग एक्चुअली ट्राई कर रहा है। लेकिन उससे तो सरकार नहीं बनेगा ना। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा जी 126 सीटों में डेवलपमेंट ने काम किया है और इसलिए 126 सीटों का जो जनता है वो लोग हिमंत बिश्व शर्मा जी का सरकार चाहता है। और इसलिए जो भी है कांग्रेस का, हिमंत बिश्व शर्मा वर्सेस वो लोग का कोई दम नहीं है। तो ये थे हेमांगो ठाकुरिया जी है, जो पलासबाड़ी समष्टि के बीजेपी के एमएलए है, जो हमसे हॉर्नबिल टीवी से बात किया। हमारे तरफ से जो उन्होंने बात किया, तो उनके लिए उनको थैंक यू देता हूँ। तो मैं आने वाला दिनों में पता चलेगा, तो चुनाव जो नतीजा आएगा, कौन लड़ेगा और हेमांगो जी को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मैं पलासबाड़ी से नकुल चंद्र राभा, हॉर्नबिल टीवी। Opposition parties in Assam on Friday filed an FIR at Dispur Police Station, Guwahati, alleging vote chori through the ongoing special revision of the electoral rolls. The FIR was lodged against the ruling Bharatiya Janata Party, accusing it of carrying out the special revision exercise in collusion with the Election Commission to deliberately manipulate the voters' list. Opposition leaders alleged that the process is being misused to delete the names of genuine voters ahead of the forthcoming elections. The complaint was submitted around 10 a.m. as part of a coordinated program by opposition parties, who warned that such actions pose a serious threat to democratic rights. They demanded an immediate halt to the special revision process and called for a transparent, impartial review of the electoral rolls. Senior Congress leader and former MP Ripun Bora, speaking to the media after filing the FIR, alleged a planned conspiracy behind the exercise. The Congress leader also accused the Election Commission of remaining silent despite the seriousness of the allegations. Opposition leaders warned that they would launch statewide protests and pursue legal and constitutional remedies if immediate corrective steps are not taken, accusing the BJP government of indulging in anti-democratic and anti-constitutional activities.
है भूत छुरी का जो घटना, वो अभी जो बीजेपी का प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट, उनका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें उन्होंने 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी वो टारगेट किया है और वहाँ 5,000 से लेके 10,000 तक वोट काटने का उनका साजिश है। उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रचा है और उसका पहले भी 31 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन लोगों ने 10,000 का टारगेट रख के यहाँ का जो आदमी है उनका वोट काटने के लिए जो भूतर उनका विरोध में है, ये इसका टारगेट है। ये यहाँ का जो आदिम बासिंदा है, ओरिजिनल जो इंडिजिनियस आदमी है, उनका भूत सुरा के बाहर से आदमी लेके हमारा जो पॉलिटिकल राइट है, पॉलिटिकल पावर है, उनको सुरी करना ही बीजेपी का लक्ष्य है और ओनली विकल्प अब बसा है। क्योंकि उनका जो यहाँ में जो ध्रुवीकरण का राजनीति, जो सब चीजों का अभी दाम बढ़ रहा है, जो टैक्सेशन, एक्स्ट्रा टैक्सेशन दे रहा है, इससे सारा लोग नाराज है। जो कृषक लोग है, जो एम्प्लॉय है, सब लोग नाराज है, ऑफिसर है, सब लोग ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्टर है, सब लोग नाराज है। इसीलिए वोट क्योंकि नहीं मिलेगा 2026, यहाँ बीजेपी हारना पक्का हो गया। इसीलिए लास्ट जो विकल्प है वो है भूत छुरी। इसलिए भूत छुरी करके 26 में इलेक्शन में वापस आना ही उनका मकसद है। ये जो काम है उनको करने नहीं दूंगा। इसीलिए हम लोगों ने सख्त कदम उठाने के लिए दिलीप सैकिया का अगेंस्ट में हम लोगों ने आज FIR लॉन्च किया है। Today, we all the opposition political parties unitedly we have submitted an FIR against Dilip Saikia, Member of Parliament and State BJP President, for his alleged video conference on 4th January, where he directed all his party MLAs and all district president of BJP to at least to identify 5 to 10,000 voters in every constituency for 60 constituencies, those voters who are not supporters of BJP. And he directed to give this list by 12th of January. And he entrusted one minister to supervise all these works. And so the BJP's design to delete at least 5 to 10,000 voters from each constituency. So this design has already been exposed. So this is good story. What Rahul Gandhi has been demanding and doing agitation all over in the country. So these have again proved in Assam also. So till now, the election commission is keeping mum. They have not taken any action. This is a serious offense. So therefore, we all opposition party today, we have submitted one FIR to take action as per manual, as per rules of the election commission against Dilip Saikia to take action. This is our today. This is our demand, and we, opposition party, we will start agitation all over in the state against this vote churi by the BJP government, and we want BJP government, BJP party to be desist from such anti-democratic, anti-constitutional activities. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Friday reacted to the opposition's vote chori allegations after several opposition parties filed an FIR against the BJP over the ongoing special revision of electoral rolls. Speaking to the media, the CM said the opposition was free to lodge complaints but termed the allegations unfounded, calling it a routine democratic process. Sarma emphasized that every political party has the right to raise objections or file complaints. They should file it. So, जब election commission is in on process, now no list has been published so far. So, where is the vote chori? Election हुआ ही नहीं. They are alleging that the BJP president is giving instructions. BJP president has to give instruction to its BLA so that ineligible voters' name can be deleted and eligible names are entered. That is the whole process. Otherwise, why the voter list should be revision if nobody's name is deleted and nobody's name is included? So that's the reason why entire exercise is on. But every party can do that. Not only BJP, even Congress can also file complaint.
Security forces intensified intelligence-based operations across Manipur, leading to major recoveries of arms, drugs and multiple arrests. On January 8th, a large cache of weapons and ammunition was seized from Kangpokpi district. Several arrests were made on January 7th, including an active RPF PLA cadre, an alleged arms smuggler and an individual involved in illegal liquor trade. In joint operations with the DRI, 2 drug smugglers were arrested in Churachandpur with 4.3 kilograms of heroin, vehicles and other items seized. Additionally, 20 acres of illegal poppy cultivation were destroyed in Churachandpur district. Security officials stated that such operations will continue to curb insurgency, arms smuggling and narcotics activities across the state. And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.